رات کی تاریکی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ وقت بیتتا جا رہا تھا۔ رات کا فسو ہر طرف پھیلتا جا رہا تھا۔ حویلی کے تمام مکین خواب و خرگوش کے مزے لے رہے تھے، اپنے کمروں میں پرسکون نیند سو رہے تھے، مگر حویلی میں دو نفوس ایسے تھے جو جاگ رہے تھے، جو مناسب وقت کی طاق میں تھے۔ ان میں ایک ماہم تھی اور ایک شاہزین خانزادہ۔ ماہم کب سے شاہزین پر نظریں گاڑ کر بیٹھی تھی۔ عصر کے وقت سے جب شاہزین گھر آیا تھا اور جب ماہم کو اس کے پروگرام کے بارے میں خبر ملی تھی، تب سے وہ چکنا ہو گئی تھی۔ اتفاق سے وہ اس وقت شاہزین کے کمرے کے پاس سے گزر گئی تھی جب اس نے اپنے دوست کے ساتھ بات کرتے ہوئے سنا، ہاں یار، آج رات کو بابا جان کے سونے کے بعد میں تم لوگوں کے ساتھ مری کے لیے لازمی نکلوں گا۔ تم جانتے تو ہو کہ آج کل بابا جان مجھے بغیر سیکیورٹی کے حویلی سے باہر نہیں نکلنے دیتے۔ ہماری دشمنی بھی تو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ بابا جان کو میری جان کی بہت پرواہ ہے، محبت بھی تو بہت کرتے ہیں مجھ سے، تبھی تو ان کے سونے کا انتظار کر رہا ہوں، ورنہ میرا بس چلے تو ابھی آ جاؤں۔ شاہزین نے اسے اپنے پورے پروگرام سے آگاہ کر دیا تھا۔ یہ جانے بغیر کہ ماہم دروازے کے باہر کان لگا کر کھڑی ہوئی تھی، اور یہ سب سن کر ماہم کے ذہن میں وہ آئیڈیا آیا تھا۔ وہ تو ہمیشہ سے اس حویلی میں قید رہی تھی۔ وہ کیا، حویلی کی ساری لڑکیاں جیسے کسی قیدی جیسی زندگی گزارنے پر مجبور تھیں، اور یہ ان سب لڑکیوں کا مشترکہ خیال تھا۔ ان کے خیال میں حویلی سے باہر کی دنیا، زندگی بہت حسین تھی، دلکش تھی، رنگوں سے پر تھی، جبکہ رنگ اور خوشیاں تو حویلی میں بھی تھے، مگر لڑکیوں کو آزادی محض حویلی میں گھومنے پھرنے کی حد تک تھی۔ حویلی کی کسی بھی لڑکی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، انہیں تمام سہولیات یہیں پر میسر تھیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ تتلیوں کی مانند اڑنا پھرنا چاہتی تھیں۔ باقی لڑکیاں تو پھر کنات پسند تھیں، مگر ماہم کسی کے کہنے سننے میں نہیں تھی۔ بچپن سے ہی وہ اپنے ماحول سے شوقی تھی، اسے یہ سب بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہوئی، صبح سے لے کر شام تک اسی حویلی میں گزار دو۔ اسے رشک آتا تھا شاہزین پر، وہ بھی تو اسی حویلی کا مکین تھا، مگر وہ کس قدر آزادی سے حویلی سے باہر گھومتا پھرتا رہتا تھا، کتنے کتنے دن تک حویلی سے باہر رہتا تھا۔ گوکیا بابا جان نے اس پر بھی سختی کرنی شروع کر دی تھی۔ کچھ دن پہلے 2 سے 3 بار کسی نے شاہزین پر حملہ کیا تھا، اور خوش قسمتی سے وہ صاف بچ نکلا تھا۔ اس سب سے بابا جان بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے شاہزین پر سختی کرنی شروع کر دی تھی۔ وہ ملازموں کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا، اور آج جب ماہم نے اسے بات کرتے سنا تو اس نے سوچا کہ وہ اس طرح سے شاہزین کے ساتھ حویلی سے نکل کر باہر جا سکتی ہے اور دیکھ سکتی ہے کہ باہر کی دنیا کیسی ہے۔ سب کے سونے کے بعد وہ چھپتے چھپاتے شاہزین کی گاڑی کے پاس آئی تھی۔ اس کی ڈگی کھول کر وہ اس میں بیٹھ گئی تھی۔ اسے دل ہی دل میں ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے، مگر دل میں یہ سوچ کر مطمئن بھی تھی کہ یہ گاڑی اس کا تایا زار ہی تو چلا رہا تھا۔ اس کی موجودگی میں ماہم کو کس بات کی فکر۔ جب گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تو ماہم کے کان کھڑے ہو گئے تھے اور دل بے ترتیبی سے دھڑکنے لگا تھا۔ جوں جوں گاڑی ہچکولے لے کر آگے بڑھتی جا رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ ماہم کا سانس بھی اتل پتل ہوتا جا رہا تھا۔ پہلی بار وہ اپنے گاؤں کی حدود سے نکل کر باہر آئی تھی، وہ بھی یوں چوروں کی طرح چوری چھپے۔ وہ جس کی گاڑی میں تھی وہ تو اس کی موجودگی کے بارے میں بے خبر تھا۔ حویلی میں بھی کوئی اس کی اس بے وقوفی کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ جب خان اسے دیکھے گا تو وہ کیسے رد عمل کا اظہار کرے گا۔ وہ اس پہ غصہ کرے گا، ڈانٹے گا، یا پھر فوراً واپس چھوڑ آئے گا، مگر وہ یہ سب نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ اس کا ذہن آنے والے خوشگن خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ وہ بھی دنیا کو اپنی نگاہوں سے دیکھے گی، گھومے گی پھرے گی، گاڑی اونچے نیچے راستوں سے آگے بڑھ رہی تھی، وہ بھی اس کے ساتھ ادھر ادھر گرتی پڑ رہی تھی۔ ایک بار تو اس کا سر بھی ٹکرا گیا تھا۔ درد کی ایک لہر اسے اپنے وجود میں دوڑتے ہوئے محسوس ہونے لگی تھی، اور اب اسے ڈر بھی لگنے لگا تھا، نہ جانے یہ سفر کتنی دیر تک جاری رہے گا اور کب وہ گاؤں کی حدود سے باہر نکلیں گے۔ اب 2 گھنٹے بیت گئے تھے مسلسل سفر کرتے ہوئے، اور پھر جب گاڑی ایک جگہ پر رکی تب ماہم کی جان میں جان آئی تھی۔ اس نے سکا سانس لیا تھا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد گاڑی پھر سے چلنے لگی تھی، مگر اب گاڑی ایک ہموار سڑک پر رواں دواں تھی۔ یوں اب اس کا سفر آرام سے طے ہو رہا تھا۔ کئی بار اس کا دل چاہا کہ وہ خان کو اپنی موجودگی کا احساس دلائے، اسے بتائے کہ میں تمہارے ساتھ سفر کر رہی ہوں، مجھے اپنے ساتھ آگے سوار کر لو، مگر نہیں، ابھی تو وہ لوگ گاؤں کی حدود سے نکلے تھے، اور اگر ابھی وہ خان کو بتا دیتی تو وہ اس کی موجودگی سے خائف ہو کر یقیناً ابھی اسے حویلی واپس بھجوا دیتا۔ ماہم ابھی ایسی بے وقوفی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی موجودگی سے خان کو آخری لمحے تک بے خبر رکھنا چاہتی تھی، تاکہ جب تک خان کو اس کی موجودگی کا علم ہو تب تک بہت دیر ہو جائے اور وہ اسے واپس لے کر جانے کے بارے میں سوچ نہ سکے۔ اب خان نے ایک ریسٹورنٹ کے قریب گاڑی روک دی تھی۔ اس کا کچھ کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ آج اس کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ کتنے دنوں کے بعد تو وہ گھومنے پھرنے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ مری جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ شکار کرنے کے لیے اسے آگے جانے کا بھی ارادہ تھا۔ مری کی ٹھنڈی فضائیں اسے ہمیشہ ہی بہت اچھی لگتی تھیں، اسے اپنی جانب کھینچتی تھیں۔ ایک عجیب سا فسواں اس پر طاری ہو جاتا تھا۔ اس وقت بھی وہ آنے والے لمحات کا سوچ کر خوش ہو رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کیسی مصیبت اس کا انتظار کر رہی۔ کافی دیر تک جب گاڑی ایک جگہ پر رکی رہی تو ماہم نے سوچا کہ اب مجھے گاڑی سے اتر کر نیچے آ جانا چاہیے۔ اتنا تو اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لوگ اپنے گاؤں کی حدود سے بہت دور تک نکل آئے ہیں۔ اب اسے بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی اور پیاس کی شدت کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ کتنی دیر تک وہ یوں گاڑی میں چھپ کر بیٹھ سکتی تھی؟ آخر اسے باہر نکلنا تھا، اور شاہزین خان کو اس کے بارے میں پتہ تو چلنا ہی تھا۔ کافی دیر تک جب گاڑی ایک ہی جگہ پر رکی رہی تو ماہم ڈگی کھول کر نیچے آ گئی تھی۔ ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہاں پر ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ بنا ہوا تھا جس سے روشنی چھن چھن کر باہر آ رہی تھی۔ ماہم حیرت بھری نظروں سے اس ریسٹورنٹ کو دیکھ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار یوں کھلے آسمان تلے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے ڈر کا احساس بھی ہو رہا تھا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس دنیا میں وہ اکیلی رہ گئی ہو۔ اب وہ آہستگی سے قدم اٹھاتے ہوئے اسی ریسٹورنٹ کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یقیناً شاہزین خان اسی ریسٹورنٹ کے اندر ہی موجود ہوگا۔ اکا دکا لوگ نظر آ رہے تھے۔ اسے باہر دروازے سے ہی شاہزین ایک طرف بیٹھا دکھائی دینے لگا تھا جو موبائل پر مصروف تھا۔ ماہم کا دل ایک بار زور سے دھڑکا، خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے شاہزین اسے دیکھ کر کیسے رد عمل کا اظہار کرے گا۔ ایک پل کو اس نے سوچا کہ وہ دوبارہ سے گاڑی میں جا کر چھپ جائے، مگر نہیں، وہ اب دوبارہ اس قید خانے میں نہیں جا سکتی تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ اگر دوبارہ اس ڈگی میں گئی تو اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ شاہزین کا تو سامنا کرنا ہی تھا۔ ایک بار اگر وہ ڈانٹ دیتا تو ماہم کا ڈر بھی زائل ہو جاتا اور بات کی بعد میں دیکھی جا سکتی تھی۔ یوں بھی شاہزین کا غصہ خان بابا جیسا نہیں تھا جن کے غصے اور جلال سے در و دیوار کانپ جاتے تھے۔
शाहजैन ने ज़रा नज़र उठाकर माहम की तरफ देखा, दोबारा नज़र झुका ली। मगर ये क्या? यकदम उसके जहन में जैसे अलार्म बजा था। उसके पीछे खड़ी लड़की उसकी हवेली में रहने वाली माहम जैसी क्यों थी? क्या ये सच में माहम थी या उसका वहम था, या उसकी शक्ल की कोई और लड़की थी? अब उसने गौर से माहम को देखा, जिसके पाँव में जूते तक नहीं थे और वैसा ही लंबा पाँव तक आता हुआ फ्रॉक पहना हुआ था जो उसकी शख्सियत का हासा था। उसने बड़ी सी चादर में खुद को छुपाया हुआ था, आधे से ज़्यादा चेहरा नुमायां हो रहा था। बालों की कुछ लटें चेहरे के आसपास बिखरी हुई थी और वो इल्तिजाई अंदाज में उसे देख रही थी। माहम जल्दी जल्दी में उसकी गाड़ी में सवार हो गई थी। जब तो उसे जूते पहनने का भी शौक नहीं था। उसके जहन पे तो बस यही धुन सवार थी कि आज उसने हर हाल में शाहजैन के साथ उस हवेली से बाहर निकलना है और देखना है कि बाहर की दुनिया कैसी है। वो शाहजैन के पास आकर बैठ गई। शाहजैन भाई, प्लीज़ आप मुझ पर गुस्सा मत करिएगा, मैं आपके साथ हवेली से बाहर निकली थी। उसकी आवाज़ सुनकर शाहजैन जैसे होश की दुनिया में वापस आया था। तो इसका मतलब ये था कि ये सब उसका वहम नहीं था, ये हकीकत थी। माहम उसके सामने मौजूद थी और वो रात के अंधेरे में छुपकर उसके साथ हवेली से बाहर निकली थी। शाहजैन का तो दिमाग ही घूम गया। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है माहम? ये क्या हरकत की है तुमने? ऐसा कौन करता है भला? अब माहम रो देने को थी। शाहजैन का गुस्सा वो पहली बार देख रही थी। उसका गुस्से से बुरा हाल था। उसे लग रहा था उसके चेहरे की रगें तन गई थी, आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। माहम की आंखों से आंसू बहने लगे। शाहजैन भाई, आप जानते हैं कि सारी जिंदगी हम लोगों ने इसी हवेली में कैद होकर गुजारी है। मेरा दिल चाहता था कि मैं भी आपकी तरह आज़ाद फिजाओं में घूमूं फिरूं, देखूं कि हवेली के बाहर कौन सा जहान आबाद है, बाहर लोग कैसे रहते हैं। मैंने अक्सर कहानियों में पढ़ा है कि बाहर की दुनिया तो बहुत खूबसूरत है, लड़कियां तितलियों की मानिंद उड़ती फिरती हैं। अक्सर ड्रामों में भी तो यही चीज़ दिखाई देती है, कैसे आज़ादी से सब लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और आप पर भी तो कोई रोक टोक नहीं करता, क्योंकि आप लड़के हैं इसलिए। और मेरे दिल में कोई जज्बात नहीं है। मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर मैं अपनी इस ख्वाहिश पर बंद नहीं बांध पाई। वो तो सिसक पड़ी थी। शाहजैन ने अपना सर थाम लिया। मैं तुमसे ऐसी बेवकूफ़ी की तवक्को नहीं कर रहा था। माहम, आधी रात का वक्त है और तुम हवेली से चुपकर भाग कर आई हो। ज़रा सोचो कि जब सुबह सब लोगों की आंख लगी और तुम्हें हवेली में गैर मौजूद पाएंगे तो कैसी कयामत न टूट पड़ेगी। सब क्या सोचेंगे? सब लोग जवान लड़की जब रात के अंधेरे में घर से गायब हो जाए तो वो लोग माशरे में किसी के सामने सर उठाने के काबिल नहीं रहते। और तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो तुम इन नज़ाकतों को समझ ना सको। 18 साल की हो गई हो तुम। मैं तुमसे ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं कर रहा था। न चाहते हुए भी शाहजैन की आवाज़ ऊंची हो गई थी और माहम खौफ से थर थर कांपने लगी थी। आंसू उसकी आंखों से लड़कते हुए गालों से छूकर नीचे गिर रहे थे। तभी शाहजैन के मोबाइल की घंटी बज उठी थी। लो, वही हुआ जिस बात का डर था। वो सख्त तन भी नज़रों से माहम को घूरते बोला, तुम्हारी आवाज़ ना निकले मुँह से। और माहम ने यूं लफ्ज़ सी लिए थे जैसे अगर उसने एक लफ्ज़ भी कहा तो शाहजैन उसकी जान ले लेगा। जी बाबा साईं, मोबाइल ऑन करके वो माहम की तरफ देखते हुए बोला था, मैं असल में कुछ दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकला हूँ। अचानक से इरादा बन गया, आपको डिस्टर्ब करना मैंने मुनासिब नहीं समझा। बाबा जान, आप फिक्र मत करें, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा। बाबा जान, मेरे दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं जो मेरा ख्याल भी रख रहे हैं और मेरी हिफाजत करने के लिए मेरे पास कोई सिक्योरिटी भी मौजूद है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, कुछ भी नहीं होगा मुझे। फ़ोन बंद करके वो एक बार फिर से माहम को घूरते हुए बोला। इसका मतलब था कि बाबा साईं को पूरी बात मालूम नहीं थी। उन्हें अभी तक सिर्फ शाहजैन की गैर मौजूदगी का इल्म हुआ था। माहम के बारे में वो अभी तक बेखबर थे, यानी कि अभी तक वो कयामत हवेली में नहीं पहुंची थी। क्या कह रहे थे खान बाबा? माहम डरते डरते गोया हुई थी। तुम्हें अगर बाबा साईं की इतनी ही फिक्र होती तो तुम ये हरकत ना करती। अब की बार वो शर्मिंदा हो गई। बाबा साईं को अभी तक तुम्हारे बारे में मालूम नहीं हुआ कि तुम हवेली में नहीं हो, और जब उन्हें मालूम होगा तो जानती हो क्या होगा। अब तो माहम को भी गड़बड़ का एहसास हो रहा था। इतनी बारीकी से तो उसने हालात का नहीं सोचा था और ना ही आने वाले हालात का जायजा लिया था। वो तो महज अपनी मस्ती में गुम थी और घूमने फिरने के शौक में वो घर से बाहर निकली थी। उसे यही था कि शाहजैन उससे थोड़ा बहुत डांटेगा, गुस्सा करेगा और फिर वो उसे अपने साथ लेकर चलने पर रजामंद हो जाएगा और घर आकर वो बाबा साईं को बता देगा कि वो उसे अपने साथ लेकर गया। मगर शाहजैन का तो गुस्सा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अच्छा, तो फिर आप मुझे वापस ले चलें, माहम भीगी हुई आवाज़ में बोली तो शाहजैन का पारा चढ़ गया था। क्या कहा? वापस ले चलूं? अभी तो ये मुमकिन ही नहीं है। अगर मैं अभी तुम्हें वापस लेकर गया तो जब तक मैं तुम्हें लेकर हवेली पहुंचूंगा तो सब लोग जाग चुके होंगे और सब लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि तुम पूरी रात मेरे साथ रही हो। उसकी इस बात पर माहम की नज़रें झुक गई थीं। इससे बेहतर यही है कि मैं तुम्हें अपने साथ मरी ही लेकर जाऊं और जब मैं 2-3 दिन के बाद वापस जाऊंगा तो मैं सब लोगों को बता दूंगा कि तुम छुपकर मेरी गाड़ी में सवार हुई थी। मेरी इसमें कोई रजामंदी शामिल नहीं थी और ना ही मैं तुम्हारे बारे में जानता था। उस वक्त शाहजैन उसे बिल्कुल किसी जलाद की मानद लगा था जो कैसे उस पर हुक्म चला रहा था। उसके जज्बात को, एहसासात को समझने के बजाय वो अपने आप को इन सब चीज़ों से बेनियाज जाहिर करने की कोशिश कर रहा था। उसे माहम पर इतना भी रहम नहीं आया कि उसे जूते ही दिला दे। टेंशन के मारे शाहजैन की भूख मर चुकी थी। फिर चाय पीने के बाद वो दोनों वहां से निकल आए थे। माहम उसी तरह नंगे पाँव चलते हुए गाड़ी में आकर बैठ गई थी। अब वो शाहजैन के साथ आगे सवार थी। गो के मरी का रास्ता आधा रहता था, मगर शाहजैन ने गाड़ी की स्पीड इतनी तेज़ कर रखी थी कि उसने वो फासला आधे वक्त में तय कर लिया था। और यूं तेज़ गाड़ी चलाने से माहम बुरी तरह से खौफजदा हो रही थी। वो उसे ये भी नहीं कह सकती थी कि गाड़ी ऐसे चलाएं। वो इतने गुस्से में था कि वो उसे मुखातिब करने की जरूरत नहीं कर सकती थी। शाहजैन को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे माहम का सारा गुस्सा वो अपनी गाड़ी पर ही उतार रहा था। अब वो माहम को लेकर होटल में पहुंच गया था। होटल उसने पहले ही बुक करवा रखा था, अगर यहाँ पर तो उसने अपने दोस्तों के साथ रुकना था। अब करे तो क्या करे, माहम को यहाँ पर कैसे ठहरा सकता था। माहम तो उस पर किसी मुसीबत की तरह नाजिल हो गई थी। उसका कोई ना कोई बंदोबस्त तो करना था। जो भी था उसके खानदान की इज्जत थी। अगर कोई ऐरी गैरी लड़की होती तो वो उसकी परवाह न करता, अपने रास्ते पर हो लेता। मगर ये खानदान की इज्जत थी और उसे हर हाल में खानदान की इज्जत का पास रखना था। बार बार माहम की बेवकूफ़ी पर उसे ताव भी आ रहा था। साथ ही एक होटल में कमरा उसने माहम के लिए बुक करवाया था।
चलते चलते उसकी नज़रें माहम के पाँव पर पड़ी। उसके नंगे रुई के गोलों जैसे पाँव सर्दी से ठरठरा रहे थे। माहम को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मरी में इस कदर ठंड होगी। वो अपने मामूल के लिबास में थे। उसने तो जल्दी में पाँव में जूते भी नहीं पहने थे। अब इक्का दुक्का दुकानें भी खुली हुई थी। एक दुकान से शाहजैन ने उसे जूते दिलाए थे और अब वो उसके लिबास का क्या करता। सर्दी की वजह से वो कप आ रही थी। अब तो उसके पास कैश में इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे शॉपिंग करवाता, जबकि क्रेडिट कार्ड से पैसे निकलवाने में अच्छा खासा टाइम लग जाता। तब तक तो उसके दोस्त भी यहाँ पर पहुंच जाते। करे तो क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस लड़की ने तो उसके ख्वास गुम कर दिए थे। कितना खुश था वो आज के इतने दिनों के बाद अपने दोस्तों के साथ वो घूमने के लिए मरी में जा रहे, यादगार वक्त गुजारने के लिए जा रहे। मगर इस माहम की वजह से सारा प्लान चौपट होता नजर आ रहा था। अपने कंधों से उसने शाल उतारी और माहम को घूरते हुए कहने लगा, ये शॉल ओढ़ लो। फिर वो उसे लेकर कमरे में आ गया। अब तुम आराम से इस कमरे में बैठ जाओ। इस कमरे से बाहर निकलने की जरूरत नहीं। मुझे तुम्हारी शक्ल भी बाहर नजर नहीं आनी चाहिए। वो उसे होटल के कमरे में छोड़कर बाहर आ गया था, मगर उसका जहन मुसलसल उलझा हुआ था। तभी उसके दोस्तों की भी कॉल आ गई। अरे शाहजैन, कहाँ हो तुम? हम लोग होटल में आ गए, मगर अभी तक तुम पहुंचे नहीं। हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कहाँ पर हो यार? मुझे कुछ जरूरी काम आ गया। मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता। जहाँ पर उन लोगों ने शिकार के लिए जाना था वो जगह मरी से कुछ फासले पर थी। शाहजैन घर से तो शिकार के इरादे से ही आया था, मगर अचानक से उसका इरादा बदल गया। दोस्तों का भी मूड बुरी तरह से खराब हो गया था। शाहजैन, तुम ऐसे तो नहीं थे अपनी बात से फिरने वाले, तो फिर अब क्यों हमारा मूड खराब कर रहे हो? कहाँ पे हो तुम? अगर तुम्हें आने में देर हो जाएगी तो हम तुम्हारा इंतजार कर सकते हैं। अरे नहीं यार, मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं आ सकता और तुम लोग चले जाओ। मुझे ज़रूरी काम है। बाबा साईं की वजह से मुझे कुछ काम पड़ गया। जानते तो हो बाबा साईं को। अब उसके पास यही बहाना रह गया था कि वो बाबा साईं का नाम लगाकर उन लोगों से जान छुड़वा ले। इसके अलावा वो और कर भी क्या सकता था। एक बार फिर से शिद्दत से उसे माहम पर गुस्सा आया था। वो एक जगह पर बैठ गया था। अब सोच रहा था कि आगे करे तो क्या करे। दूसरी तरफ माहम हैरत भरी निगाह से उस कमरे को देख रही थी। कमरे का फर्नीचर बहुत नफीस और खूबसूरत था। ये सब कुछ माहम को बहुत अच्छा और अनोखा लग रहा था। वो एक एक चीज़ को हैरानगी से देख रही थी। गो कि उनकी हवेली में भी एक से बढ़कर एक शय कीमती थी, मगर वो सब ज्यादातर बाबा साईं की पसंद से ही सामान आता था। जबकि यहाँ पर जो फर्नीचर था वो बदलते तकाजों के ऐन मुताबिक था। माहम को चाहिए तो था कि वो रात भर की जागी हुई है, अपनी नींद पूरी कर लेती, मगर उसकी बेचैन तबीयत को उस कमरे में भी करार नहीं आ रहा था। काफ़ी देर गुजर गई थी। उसने सोचा कि शाहजैन तो यहाँ से चला गया होगा, क्यों ना मैं कमरे से बाहर निकलकर घूम फिर कर देख लूँ ये जगह कितनी खूबसूरत है। यहाँ तक आते आते उसे अंदाजा हो गया था कि ये जगह उसके ख्वाबों जैसी है। अक्सर वो अपने अपने ख्वाबों में ऐसे ही खूबसूरत जगह पर किसी शहजादे का हाथ थाम कर घूमती रहती थी। उसका जी ललचाने लगा था कि वो एक बार फिर से उस कमरे से बाहर निकल कर जाए और उन आज़ाद फिजाओं में सांस ले सके। मोहतात नज़रों से वो इधर उधर देखते हुए कमरे से बाहर निकल कर आ गई थी और फिर बाहर आकर वो माल रोड पर घूमने लगी। आसपास लोगों की भीड़ थी। जिंदगी में पहली बार वो इतने अजनबी चेहरों के दरमियान मौजूद थी। उसे घबराहट का एहसास हो रहा था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी घबराहट पर काबू पा लिया था। उसे ये सब अच्छा लगने लगा था। इतना खूबसूरत, बिल्कुल अपने ख्वाब जैसा। वो ख्वाब की कैफियत में ही घूमती जा रही थी और बहुत आगे निकल आई थी। तभी शाहजैन की उस पर नजर पड़ी। दूर से उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे वो लड़की कोई और नहीं बल्कि माहम है, क्योंकि उसके कंधों पर शाहजैन की ही शॉल थी। वो बेखुद अंदाज में चलती जा रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी खोए हुए देश की शहजादी इस रोए जमीन पर आ गई हो, अपनी दुनिया का रास्ता भूल चुकी हो, हर एक चीज़ को अजनबी नज़रों से देख रही हो। गुस्से की एक लहर उसके पूरे वजूद में फिर से दौड़ गई थी। शाहजैन को ऐसे महसूस हुआ जैसे उसके आसपास जो लड़के मौजूद थे वो उसी का पीछा कर रहे थे। दूर से ही उसे महसूस हो गया था जैसे वो उसे गंदी नज़रों से देख रहे थे। वो एक झटके से अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। अपने खानदान की एक लड़की की इतनी जुर्रत देखकर वो आग बगोला हो गया था। तेज तेज कदम उठाते हुए वो माहम के करीब आकर पहुंचा था। माहम ने यकदम शाहजैन को अपने सामने देखा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो खौफजदा नज़रों से उसे देखने लगी। शाहजैन भाई, मैं यूं ही घूमने के लिए बाहर आ गई थी। शाहजैन ने उसका बाजू दबोचा और सख्ती से उसे पकड़कर उसी कमरे में लेकर आ गया। तुम्हें जब मैंने मना किया था कि तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी तो तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आई थी क्या? माहम के पास इसकी बात का कोई जवाब नहीं था। खामोशी से वो सोफे पर टिक कर बैठ गई थी। हरासा नज़रों से उसे देखे जा रही थी। शाहजैन का बस नहीं चल रहा था वो उसे कच्चा चबा जाए। अब वो भी एक तरफ बैठ गया था। सर उसने दोनों हाथों में थामा हुआ था। सोच रहा था करे तो क्या करे, कहाँ जाए। बाहर निकल कर जाता तो फिर माहम कमरे से बाहर निकल कर चली जाती, और अगर उसे कुछ हो जाता तो वो उसे छोड़कर दोस्तों के साथ भी नहीं जा सकता था। कैसे वो उस बेवकूफ़ लड़की को अकेला उस कमरे में छोड़कर चला जाता, और कमरे में रहना भी मुनासिब नहीं था। काफ़ी सारा वक्त यूं ही बीत गया। उसे भूख भी सता रही थी। अब की बार माहम खामोशी से एक जगह पर बैठ चुकी थी। उसके चेहरे की तासुरात से उसके जज्बात और एहसासात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। अब उसे एहसास हुआ था कि जब से वो लोग घर से निकले हैं उन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया। माहम भी भूख की बहुत कच्ची थी। सुबह होते ही वो नाश्ते का शोर मचा देती थी, जबकि शाहजैन का हाल भी कुछ ऐसा ही था। उसने खाना ऑर्डर किया। उसकी आंखें भी नींद से बोझल हो रही थी। वो बिस्तर पर दराज हो गया था। नींद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, मगर एक तो लंबा सफर करने की वजह से वो थक चुका था और नींद पूरी ना होने की वजह से भी उसका दिमाग बोझल हो रहा था। वो बेड पर दराज हो गया। जब वेटर खाना लेकर कमरे में आया तो उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, मगर नींद उस पर बुरी तरह हावी हो रही थी। जहन तारीकियों में डूबता जा रहा था। माहम को अब अपनी गलती का शिद्दत से एहसास भी हो रहा था। उसमें इतनी जरूरत नहीं थी कि वो शाहजैन जैसे गुस्से और बारूद मर्द को उठाकर कहती कि मुझे घर वापस लेकर चलो या फिर उस कमरे से बाहर निकलो, कमरे में मेरा दम घुट रहा है। ऐसा कहने की जरूरत तो वो ख्वाब में भी नहीं कर सकती थी। और यूं भी ये सब कुछ तो उसी की मर्जी के मुताबिक हुआ था। वो यही तो चाहती थी। अब वो इस सब में शाहजैन को कैसे कसूरवार करार दे सकती थी। वेटर ऑर्डर लेकर अंदर आ गया था। नाश्ता देखकर माहम की भूख भी बुरी तरह से चमक उठी थी। कमरे में उसे कोई टेबल तपाई नजर नहीं आ रही थी। तभी वो ट्रे उठाकर बेड के ऊपर बैठ गई थी, और यूं भी पूरा बेड खाली ही तो था। शाहजैन एक तरफ सो रहा था, माहम भी एक कोने में सिमट कर बैठकर खाना खाने लगी थी। उसका जहन भी मुख्तलिफ सोचों के ताने बाने बन रहा था कि आने वाला वक्त उसे क्या रंग दिखाने वाला है।
थोड़ी ही देर गुजरी थी जब उसे एक गरजदार बारूब आवाज़ सुनाई दी थी। अब तो वो जी जान से कांप कर रह गई थी। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि खान बाबा की थी। खान बाबा यहाँ मरी में क्या कर रहे थे? माहम इस बात से बेखबर थी कि ये होटल खान बाबा के दोस्त का था। खान बाबा भी यहाँ पर अक्सर आते रहते थे। जब भी वो आते थे तो उनका क़याम इसी होटल में होता था। ये लोग उनके एतबार के थे और यही वजह थी कि शाहजैन माहम को इसी होटल में लेकर आया था, क्योंकि उसे इस बात का यकीन था कि यहाँ पर माहम हिफाजत से रहेगी। मगर खान बाबा भी यहाँ पर पहुंच जाएंगे इस बारे में तो शाहजैन भी बेखबर था और यूं भी वो बहुत परेशान था। उसका जहन ज्यादा सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो रहा था। कहाँ है शाहजैन? उसका कमरा बताओ मुझे। माहम को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। वो कमरे से निकलकर भाग जाए, अगर भाग कर जाएगी भी तो कहाँ पर? अगर वो खो गई तो? तभी वो आवाज़ उसे कमरे के बाहर से सुनाई दी गई। यकीनन खान बाबा को शाहजैन के कमरे में पहुंचा दिया गया था। दरवाज़ा भी खुला हुआ था। अब खान बाबा कमरे में आ गए थे। सामने का मंजर देखकर उनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। शाहजैन बेड पर सो रहा था और बेड पर ही एक तरफ माहम बैठकर नाश्ता कर रही थी। माहम यहाँ कैसे? वो हैरत ज़दा सी उसे देखती ही रह गई थी। वो तो ये समझ रहे थे कि माहम सारी लड़कियों के साथ हवेली में मौजूद है। शाहजैन हमेशा की तरह उन्हें चकमा देकर घूमने फिरने के लिए बाहर आ गए। 2 बार तो उस पर हमला हो चुका था। तभी तो वो गुस्से में थे कि शाहजैन एक बार फिर से उन्हें बताए बगैर आ गया। अगर एक बार फिर से उस पर हमला हो गया तो? यही वजह थी कि वो खुद ही उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए थे। होटल वालों ने भी बता दिया था कि शाहजैन इसी होटल में आकर रुका, मगर वो ये नहीं जानते थे कि उन्हें क्या मंजर देखने को मिलेगा। माहम जैसे बौखला कर अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई थी। उसका रंग पीला पड़ चुका था और खान बाबा के चेहरे पर जलाल के असरात नजर आ रहे थे। आंखों में सुर्ख डोरे दौड़ रहे थे। शाहजैन? उन्होंने गरजदार आवाज़ में शाहजैन को पुकारा तो वो नींद भी हड़बड़ा कर रह गया। आंखें खुली और अपने सामने बाबा साईं को देखा तो वो बिजली की तेजी से अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। वो कभी माहम की तरफ देख रहा था तो कभी खान बाबा की तरफ, जिनका चेहरा जलाल की वजह से सुर्ख हो रहा था। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। शाहजैन उनके चेहरे पर तासुब था, आंखों में बरहमी थी। शाहजैन उन्हें समझाने के गर्ज से आगे बढ़ा। वहीं रुक जाओ शाहजैन, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारे जैसा इंसान ये सब कर सकता है। अपनी हवेली की लड़की को तुम भगाकर यहाँ ले आए। अगर तुम्हें ये पसंद थी तो तुम मुझे बता देते, मैं तुम्हारी इसके साथ शादी करवा देता। मगर यूं तुम मुझे सबकी नज़रों में रुस्वा तो ना करते, मेरी इज्जत को यूं सरेआम नीलाम तो ना करते। उसका बाप उसे मेरे भरोसे पर दयारे गैर छोड़कर गया था कि मैं उसकी हिफाजत करूंगा, और मैं क्या जानता था कि मेरा अपना बेटा मेरी भाई की इज्जत पर नकब डालेगा। उनकी बात सुनकर शाहजैन बुरी तरह से बौखला गया था। उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो गया था और खान बाबा के गुस्से से वो हमेशा से डरता आया था। बाबा, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, कोई खता नहीं है। ये माहम खुद मेरी गाड़ी में आकर छुप गई थी। ये सैर सपाटे करने की गर्ज से यहाँ पर आई थी। उसने सारी बात खान बाबा को बता दी, मगर उनके चेहरे के तासुरात से लग रहा था कि उन्होंने शाहजैन की बात पर यकीन नहीं किया। अगर ऐसी बात ही शाहजैन तो तुम मुझे फ़ोन करके बता सकते थे। जब मैंने तुम्हें कॉल की थी तब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? माहम के बारे में तुम्हारे अपने दिल में चोर था। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम रात की तारीकी में सबसे छुपते छुपाते उसे लिए तो निकले थे कि तुम्हारे दिल में चोर था। तुमने क्या नीच लोगों जैसी हरकत की है? मुझे बता देते, मैं निकाह करवा देता। बाबा, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। शाहजैन की मुट्ठियां सख्ती से पींची हुई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो खान बाबा को कैसे बताए कि वो जो समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हकीकत उससे उलट है। मगर खान बाबा मुसलसल नफी में सर हिला रहे थे। मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती। तुम क्या समझ रहे हो? जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वो झूठ है। मैंने एक उम्र गुजारी है। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए। मुझे अंदाजा हो गया कि तुम्हारे दिल में खोट है। अरे ये तो औरत जात है। औरत जात तो होती ही अकल में आती है, मगर तुम तो मर्द थे, पूरी अकल रखते थे। क्यों तुमने ऐसा किया? मुझे मेरे भाई के सामने शर्मिंदा करवा के रख दिया तुमने। जो करना था शाहजैन वो कर दिया, और अब वो होगा जो मैं करूंगा। और अब तुम मेरे किसी फैसले में नहीं बोलोगे, क्योंकि अब तुम कुछ भी बोलने का इख्तियार खो चुके हो। माहम थर थर कांप रही थी। वो कभी खान बाबा को देख रही थी तो कभी शाहजैन को। दोनों का चेहरा जज्बात की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। वो कांपते वजूद के साथ सोफे पर ढेर हो गई थी। वो नहीं जानती थी कि आने वाला वक्त उसे क्या रंग दिखाने वाला है। बल्कि शाहजैन को भी अंदाजा नहीं था कि माहम की गलती की सजा उसे भुगतनी पड़ेगी, और वो ऐसी सजा होगी कि जिससे कभी बचकर निकल नहीं सकता। खान बाबा ने सजाद को आवाज़ दी। सजाद उनका खास मुलाजिम था। वो हाफिज कुरान भी था। खान बाबा ने उसे बुलाकर सारी बात समझाई और कहा कि इन दोनों का अभी और इसी वक्त निकाह करना होगा। वो दोनों तो हैरान परेशान रह गए थे। दोनों के वहमो गुमान में भी ये था कि ऐसा भी हो सकता है। माहम ने सहमी सहमी नज़रों से शाहजैन को देखा, जबकि शाहजैन ने गुस्से भरी नज़र से उसे देखा। उसकी नज़रों में गुस्सा, तनफ्फर और न जाने क्या कुछ था, जिसे देखकर माहम बुरी तरह से सहम गई थी। वो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सोचों में गुम थे। माहम कभी भी बाबा साईं के सामने बात नहीं कर सकती थी। उनके कबीले की लड़कियां मर्दों के सामने बात नहीं करती थीं। अब वो उन्हें कैसे बताती कि सारी गलती उसकी है? खान बाबा तो उसकी जान ले लेते। माहम को रह रहकर बिस्मा के बारे में ख्याल आ रहा था। बिस्मा जो उसकी फूफोजात थी, बचपन से ही शाहजैन से मोहब्बत करती थी। शाहजैन भी उसे पसंद करता था। इस बात से पूरी हवेली ही वाकिफ थी। माहम कभी भी दानस्ता तौर पर बिस्मा का दिल दुखाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। बल्कि उसने तो कभी शाहजैन के बारे में भी इस नज़र से नहीं सोचा था। वो तो उसे हमेशा अपने भाई जैसा ही समझती थी, और शाहजैन भी तो उसे हमेशा बच्ची की नज़र से ही देखता था। वो उससे उम्र में 10 साल छोटी थी। वैसे भी वो बिस्मा से मोहब्बत करता था। ऐसे में उसे माहम जैसी बच्ची में क्या दिलचस्पी पैदा हो सकती थी? खान बाबा उन दोनों के तासुरात से बेनियाज सजाद को हदायत देने में मगन थे, और फिर उन दोनों को एक दूसरे को सौंप दिया गया था। मरी के पहाड़ों में अपनी हवेली से कोसों दूर उनका निकाह कर दिया गया था। 2 अजनबी दिल एक हो गए थे। एक का घर बस गया था और एक का दिल उजड़ गया था। बाबा साईं तो निकाह करने के बाद वहां से फौरन गायब हो गए। उन्होंने निकाह की मिठाई स्टाफ में बांटी और फिर वहां से चले गए। शाहजैन बुरी तरह से परेशान हो चुका था। उसे कुछ भी अंदाजा नहीं हो सका था कि बाबा साईं को कैसे उसकी खबर हुई, कैसे वहां पर पहुंच गए, जबकि यहाँ तक का फासला तो 7 घंटों का था। और ये 7 घंटों का फासला बाबा जान ने इतना जल्दी कैसे तय कर लिया था? ऐसे लग रहा था जैसे किसी गैर मखलूक ने उन्हें यहाँ पर पहुंचा दिया था। अपनी सोचों में गुम था जब उसके कानों में माहम की सिसकियां गूंजी थी।
वो बुरी तरह से रोए जा रही थी। शाहजैन को उससे चिढ़ होने लगी। बस कर दो बेवकूफ़ लड़की, तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मैं बाबा साईं के सामने नज़र उठाने के काबिल नहीं रहा, सबकी नज़रों में मुजरिम बन गया हूँ। सब लोगों को यही लग रहा होगा कि मैं तुम्हें घर से भगाकर यहाँ पर लाया हूँ, तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की है। चाचू भी मेरे बारे में यही सोच रहे होंगे और बाकी सब लोग भी। और सबसे बड़ी बात, ये तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत को छीना है। तुमने जो करना था कर दिया, अब तो मेरी बीवी बन गई हो, मगर तुम कभी भी मेरे दिल तक रसाई हासिल नहीं कर सकती। इस दिल पर हमेशा से बिस्मा की हुकूमत थी और उसी की रहेगी। वो अपनी ही बोले जा रहा था और ये समझे बगैर कि माहम तो उसकी बात को सुन रही थी न समझ रही थी। बस वो हिचकियाँ लेकर रोए जा रही थी। एकदम शाहजैन को उस पर तरस आने लगा था। इतना तो वो जानता था कि माहम एक छोटी सी लड़की थी जो जिंदगी के झमेलों से बेखबर थी, अपनी मौजों में मगन रहती थी। उसने तो हवेली के बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी, न उसे कुछ अंदाजा था। और ये जो कुछ भी हुआ था वो महज उसकी एक गलती की बना पे हुआ था। बस कर दो ये रोना धोना, तुमने जो करना था कर दिया, अब चलो वापस। वो उसे लेकर दोबारा से गाड़ी में सवार हो गया था और अब उनका रुख सवात की जानिब था। वो लोग अपनी हवेली की तरफ वापस जा रहे थे। पूरा रास्ता माहम रोती रही थी और शाहजैन के लब भी पीछे हुए थे। वो बहुत संजीदगी से ड्राइविंग कर रहा था। माहम को समझ नहीं आ रही थी कि वो बिस्मा का कैसे सामना करेगी। वो तो कभी उसका दिल नहीं उजाड़ना चाहती थी, मगर अब जो कुछ हो गया था उसके बाद क्या सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा? उसे तो ये भी समझ नहीं आ रही थी कि शाहजैन उसके साथ क्या सलूक करेगा, उसकी आने वाली जिंदगी कैसे गुजरेगी। शाहजैन तो बिस्मा से मोहब्बत करता था और अब वो क्या माहम को वैसी मोहब्बत दे पाएगा? क्या उसे अपनी बीवी तस्लीम करेगा? कितनी ही सोचें थीं जो उसे अपने घेरे में लिए हुए थी। और उसकी अम्मा साईं, वो क्या सलूक करेंगी? बाकी सब लोग, वो कैसे सामना करेगी सबका? कैसे सबके सवालों के जवाब देगी? उसका दिल भी अब खून के आंसू रो रहा था। काश वो ऐसा ना करती। अब वो पछता रही थी, मगर अब तो बहुत देर हो गई थी। पछताने से क्या फायदा? जो उसने करना था वो तो कर लिया। उनके वापस आने की इत्तला हवेली में मिल गई थी। सब लोगों को उनके निकाह की इत्तला मिल गई थी। हर किसी के तासुरात एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं थे। शाहजैन और माहम उनकी होटल में मौजूद की, वो भी रात के उस वक्त। कैसे वो सब लोगों की नज़रों में धूल झोंक कर वहाँ चले गए? और क्यों? सब लोग ही बिस्मा और शाहजैन की पसंदीदगी से वाकिफ थे। जल्द ही उन दोनों की शादी भी होने वाली थी। तो फिर ये सब क्या था? अगर शाहजैन माहम को पसंद करता था, उसे शादी करना चाहता था, तो उसने बिस्मा को ख्वाब क्यों दिखाए थे? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। मगर खान बाबा का हुक्म था कि हवेली को साफ सुथरा किया जाए, हवेली को सजाया जाए। वो उसके निकाह का जश्न मनाना चाहते थे। उनके हुक्म के मुताबिक हवेली को साफ सुथरा किया जा रहा था, हवेली को सजाया जा रहा था। हवेली में हर तरफ खुशियां नाच रही थी, सिवाय बिस्मा के कमरे के। वो अपने बिस्तर पर औंधे मुंह लेटी हुई थी, हिचकियां लेकर रो रही थी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी माहम, तुमने मेरी मोहब्बत को मुझसे छीना है, मेरे हाथ पर डाका डाला। और शाहजैन, तुमने ये क्या किया? ख्वाब तो मुझे दिखाए और दुल्हन तुमने माहम को बना लिया। खान बाबा ने माहम के बारे में भी बताया था। शाहजैन का कहना है कि माहम खुद उसकी गाड़ी में सवार हुई थी। वो बाहर की दुनिया देखना चाहती थी और बिस्मा को यकीन था कि शाहजैन झूठ नहीं बोल रहा। शाहजैन सच कह रहा है। माहम ऐसी ही तो थी, बेवकूफ़ सी लड़की, इंजाम से बेखबर। यकीनन वो दुनिया देखने की ख्वाहिश में घर से निकल गई होगी। उसकी शाहजैन को भी इसी चक्कर में ले उड़ी। बिस्मा ने फैसला कर लिया था कि वो कभी भी माहम को खुश नहीं रहने देगी, कभी भी शाहजैन से दूर नहीं रहेगी। इतना तो उसे अंदाजा था कि खान बाबा असूलों के बहुत सख्त हैं, वो इन रवायात को कभी नहीं तोड़ेंगे। कभी भी उसे अब शाहजैन हासिल नहीं हो सकता। मगर जो चीज़ उसे हासिल नहीं हो सकी थी, वो माहम भी उससे महरूम रहने वाली थी। जब उसे माहम और शाहजैन की हवेली पहुंचने की इत्तला मिली तो वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। माहम के पास आई। माहम की नज़रें तो ज़मीन में गिरी जा रही थी। वो तो नज़र उठाने के काबिल नहीं रही थी। कैसे बताती बिस्मा को कि उसने उसकी शाहजैन के साथ निकाह कर लिया? मगर बताने की नौबत ही नहीं आई थी। बिस्मा उसे दोनों बाजुओं से झंझोड़ते हुए कहने लगी कि तुमने अच्छा नहीं किया माहम, तुमने मेरी मोहब्बत को मुझे छीन कर बहुत गलत किया। तुम क्या समझती हो तुम खुश रहोगी? मैं कभी तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगी। उसकी आंखों में इंतकाम की आग जल रही थी। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। तुम देखना, मैं तुम्हारे वलीमे से पहले ही शाहजैन को तुमसे छीन लूंगी, तुम्हारा हाल अपने जैसा कर लूंगी। तुम भी मेरी तरह बदहाल रह जाओगी, तुम्हारे हाथ भी कुछ नहीं आएगा, तुम भी बर्बाद हो जाओगी जैसे तुमने मेरा दिल बर्बाद किया। वो रोते हुए वहां से चली गई थी और उसकी बातें सुनकर माहम का दिल सूखे पत्ते की मानद लरजने लगा था। बिस्मा की जुनूनी तबीयत से तो वो भी अच्छी तरह वाकिफ थी। ये भी शुक्र था कि इस वक्त उन दोनों की बातों की तरफ कोई मतवज्जो नहीं था। सब लोग माहम से नाराज थे और किसी ने भी माहम का खुश दिली से इस्तकबाल नहीं किया था। माँ की आंखों में भी उसे खिफगी नजर आ रही थी। शिकवा दुख न जाने क्या कुछ था। वो नजरें चुरा की थी। वो तो वैसे भी जमीन में गिरी जा रही थी, ऊपर से बिस्मा की बातों ने उसका दिल सहमा दिया था। और फिर हवेली की कबाली रवायात के मुताबिक शाहजैन माहम को लेकर अपने कमरे में आ गया था। ये हवेली की रवायात में शामिल था कि जब मियाँ बीवी का निकाह हो जाता था तो उसके बाद वो दोनों एक साथ ही रहते थे। जैसे उनके कमरे का दरवाजा बंद हुआ था तो बिस्मा की आंख से एक आंसू लड़कता हुआ नीचे जा गिरा था। उसने अपने हाथ की पोस्ट से अपनी आंखों को बड़ी बेदर्दी से मसल डाला था। तो क्या शाहजैन अब बिस्मा के बजाय माहम पर अपनी मोहब्बत और अपने जज्बे लुटाएगा? कमरे में होने वाले मामलात का सोच कर ही उसका दिल जैसे किसी ने अपनी मुट्ठी में ले लिया था। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जीतने दूंगी माहम, शाहजैन सिर्फ मेरा है और उसे हासिल करने के लिए अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए मैंने कुछ नहीं किया। तहज्जुद की नमाज पढ़ी, रो रो कर दुआएं मांगी और तब जाकर शाहजैन मेरी तरफ बढ़ा था। और फिर माहम, तुमने छीन लिया मुझसे। वो खुद कलामी करते हुए बोली, मगर तुम्हें मैं इतनी आसानी से ये जंग जीतने नहीं दूंगी। मोहब्बत मेरे लिए जंग की तरह रही तो है और ये जंग मैं जीत कर रहूंगी। काफी देर बीत गई थी। बिस्मा किसी जले पैर के बिल्ली की तरह अपने कमरे में चकराती फिर रही थी। बार बार उसकी नजर घड़ी की तरफ जा रही थी। जूं जूं वक्त बीतता जा रहा था उसका दिल गोया उछल कर हलक में आ रहा था। और फिर उसके जहन में एक ख्याल आया। उसने मुलाजिम को बुलाया, एक कर्टन में वो तमाम किताबें रखवा दी जो कभी घर वालों से छुपकर वो पढ़ती थी। अपनी दोस्त से उसने वो किताबें मंगवाई थी जिन पर ऐसी तस्वीरें बनी हुई थी जिनको देखकर अंदाजा हो रहा था कि अंदर कैसी खराफात मौजूद होंगी। ये सब लेकर वो उनके कमरे में आ गई थी, जबकि माहम इस सबसे बेनियाज होकर फिजाओं में न जाने क्या घूर रही थी। वो तो बिस्मा का सामना नहीं कर पा रही थी और बिस्मा ने उसके लिए कैसी चाल चली थी, माहम इस बारे में बेखबर थी। तभी शाहजैन की चिंगारती हुई आवाज़ उसके कानों में गूंजी थी। मुलाजिम वो कॉटन रखकर वहां से चला गया था।
जबकि बिस्मा तमाशा देखने के लिए वहीं पर रुक गई थी। ये खराफात तुम पढ़ती रहती हो, तभी तुम्हारे जहन में ये सब मौजूद था। उसकी आवाज़ पर माहम होश की दुनिया में आई। अब जो नावल्स पर नजर पड़ी तो बुरी तरह से घबरा गई थी। नजरें शर्म से जमीन पर झुक गई थी। ये मैं नहीं जानती ये सब क्या है, ये मेरा नहीं है। बिस्मा, ये तुम मेरे कमरे में क्यों लेकर आई हो और इसे मुझसे क्यों मंसूब कर रही हो? मैंने ये पढ़ना तो दूर की बात है, आज तक ये सब कुछ देखा भी नहीं है। वो तो ये देखकर बुरी तरह से सहम गई थी और शाहजैन का गुस्सा गोया आसमान को छूने लगा था। बहुत खूब, अब मुझे समझ आया कि तुम्हारे जहन में ये खराफात कहाँ से आई। तुम्हारे अंदर कबायली रवायात से बगावत क्यों कर पैदा हुई? ये सब कुछ इन्हीं की वजह से तुम्हारे जहन में पैदा हुआ है। अगर तुम्हें मैं इतना ही पसंद था, तुमने ये मुझे हासिल करने की साजिश क्यों रचाई थी? तुम मुझे बता देती, मैं इज्जत से तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल कर लेता, तुम्हें यूं अपनी इज्जत से खेलने तो ना देता। मगर अब फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे सारे अरमान पूरे करूंगा। वो एक एक लफ्ज से चबाता हुआ बोला था और माहम का रंग खौफ से जर्द पड़ चुका था। वहीं पर बिस्मा भी फक चेहरे के साथ उसे देखती रही थी। बाजी तो उलट गई थी। ये शाहजैन के अंदाजो अतवार क्या कह रहे थे, अब कहीं वो माहम के साथ? इसे आगे सोच कर ही उसका दम घुट रहा था। शाहजैन उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। तुम जाओ यहाँ से बिस्मा, मुझे इसके साथ कुछ हिसाब बेबाक करने हैं। तब बिस्मा कमरे से बाहर निकल कर आई तो वो पथराई हुई नजरों से दरवाजे को देख रही थी। दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। अंदर से घुटी घुटी सिसकियों की आवाजें सुनाई दे रही थी जो बता रही थी कि कमरे में क्या हो रहा है। और अब बिस्मा दोनों हाथों में सर थाम चुकी थी। ये मुझसे क्या हो गया? वो बुरी तरह से पछता रही थी। उसने आग और पानी को एक साथ कर दिया था। उसने तो अपनी बदनीयती में ये सब किया था, मगर वो क्या जानती थी कि वो शाहजैन और बिस्मा को एक दूसरे के करीब आने का मौका फराहम कर रही है, एक दूसरे को जानने का, समझने का। अब उसने तो माहम के नसीब खोल लिए थे। अपनी बददयानती की वजह से उसने शाहजैन को अपने हाथों से खो दिया था। अब वो शाहजैन जो उसका ख्वाब था हमेशा के लिए अब माहम का हो चुका था। वो अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। वो हर वक्त इसी कोशिश में रहती थी कि ऐसा क्या करे जो माहम को शाहजैन की नजरों से गिरा दे, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो ऐसा क्या करे। वो माहम को बिछड़ने के तरीके ही सोचती रहती थी। इन्हीं दिनों हवेली में एक मेहमान आकर रिहाइश पजीर हुआ था। वो खान बाबा के दोस्त का बेटा था जो चंद दिन वहां पर रहने के लिए आकर रुका था। तब बिस्मा के जहन में एक ख्याल आया कि क्यों ना वो कुछ ऐसा करे कि जिससे माहम शाहजैन की नजरों से बुरी तरह से गिर जाए और वो उसकी शक्ल में देखना गवारा न करे। बल्कि वो अब शाहजैन के साथ साथ माहम को सब लोगों की नजरों से गिराने का फैसला कर चुकी थी। उसने माहम के साथ अच्छे तरीके से बात करना शुरू कर दी थी। माहम भी उसके अच्छे रवैये को देखकर उससे भी मोहब्बत से पेश आने लगी थी। वो ये नहीं जानती थी कि बिस्मा के दिल में क्या चल रहा है, वो उसके खिलाफ कैसी कैसी साजिशें रचा रही है। मेहमान खाना खान हवेली की पिछली तरफ था, जहाँ पर एक बाग भी था। माहम ज्यादातर उस बाग में झूला झूलती रहती थी। अब जब से शाहजैन के साथ उसकी शादी हुई थी तब से वो ज्यादातर वक्त उसी बाग में अकेले ही गुजारने लगी थी। गो के बड़ी अम्मा ने उसे मना भी किया था कि मेहमान खाने में एक लड़का रुका हुआ है, ऐसे में तुम लोगों का वहां पर जाना मुनासिब नहीं। मगर वो माहम ही क्या जो किसी की सुन ले। वो उसी झूले पर ही बैठी रहती थी और बिस्मा ने उस लड़के की नजरों में माहम के लिए दिलचस्पी भांप ली थी। वो लड़का इस बात से बेखबर था कि माहम की शाहजैन के साथ शादी हो चुकी। वो उसकी मासूमियत और खूबसूरती से बुरी तरह घायल हो चुका था। तब बिस्मा ने माहम की तरफ से उसे खत लिखा जिसमें उससे मोहब्बत का इजहार किया था और उसे बताया कि वो आज रात को उससे मिलना चाहती। तब बिस्मा ने ये सोचा कि क्यों ना वो माहम को किसी तरीके से नींद की गोलियां किसी चीज में मिलाकर दे दे और फिर ऐसे वो उसके कमरे तक पहुंचा देगी। उसके बाद पूरी हवेली में ये शोर मचा दे कि माहम बदकिरदार लड़की है जो इस लड़के के साथ मेहमान खाने में काबिले एतराज हालत में मौजूद थी। क्योंकि शाहजैन भी कुछ दिनों से शहर में गया हुआ था, उसकी गैर मौजूदगी में ये काम करना बिस्मा को बहुत मुनासिब लग रहा था। वो माहम पर कोई भी इल्जाम लगा सकती थी कि शौहर के चंद दिनों की दूरी की वजह से वो बह गई। उसके होंठों पर मुस्कुराहट खिली जा रही थी। फिर अगले ही दिन उसने इस मंसूबे पर अमल करने का सोच लिया था। आज उसने माहम की तरफ से खत लिखा जिसमें अपनी मोहब्बत का इजहार किया और मुलाकात करने के बारे में भी लिखा था। जब वो खत वहां पर फेंक रही थी तो तभी उस लड़के की बिस्मा पर नजर पड़ेगी। वो हैरान परेशान रह गया था कि बिस्मा ने ऐसी हरकत क्यों की। उसे किसी गड़बड़ का एहसास हो गया था और माहम को देखकर भी अंदाजा हो गया था कि वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है जो हवेली वालों से चुपकर उससे मुलाकातें कर रही। वो जानता था कि हवेली की रवायात और इक्तदार ऐसी नहीं है। बिस्मा उसे महज फंसाने के लिए ऐसा कह रही थी, या शायद बिस्मा खुद उसे पसंद करती थी। नाम माहम का लगा रही थी। उसने खामोशी से वो खत संभाल के रख लिया था। वो बिस्मा की अगली कार्रवाई का इंतजार करने लगा था। फिर उस दिन जब माहम उठकर बाग की तरफ आने लगी तो बिस्मा जो कब से उसी पर नजरें गाड़ी हुई थी जूस का गिलास लेकर उसकी तरफ आने लगी ताकि उसे जूस पिलाकर वो उसके कमरे तक पहुंचा सके। मगर उससे पहले ही माहम चकराकर जमीन पर गिर गई। पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत अजीब सी मालूम हो रही थी। हर वक्त वो थकी थकी सी नजर आती थी। बिस्मा उसे देखकर घबरा गई। अगर बिस्मा के बस में होता तो शायद वो माहम को इसी तरह से उठाकर उस कमरे तक पहुंचा देती। माहम ने तो उसका काम आसान कर दिया था, मगर वहां पर मुलाजिम मौजूद थे। उन्होंने शोर मचा दिया और बाकी सब लोग भी भाग गए थे और फिर माहम को उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। फिर वही हुआ जिसका बिस्मा को डर था। डॉक्टर ने बताया कि बिस्मा मां बनने वाली है और हवेली में नया वारिस आने वाला है। जिसने ये बात सुनी वो खुशी से खिल उठा। सब लोगों ने माहम से अपनी नाराजगी भी ये खुशखबरी सुनकर भुला दी थी, जबकि बिस्मा का मारे सदमे के बुरा हाल हो गया था। वो जितना उन दोनों को दूर करने की कोशिश कर रही थी, तकदीर उन दोनों को एक दूसरे के करीब ला रही थी। उस दौरान शाहजैन भी वापस आ गया था। उसे भी ये खुशखबरी मालूम हो गई थी और अब तो वो माहम के आगे पीछे फिरता रहता। उसका ख्याल रखता हुआ न थकता। उसके लहजे अंदाज में माहम के लिए जो नफरत और बेजारी नजर आती थी उसका तो कहीं शोभा तक नजर नहीं आता था, बल्कि वो उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगा था। उसने माहम को हथेली का छाला बना के रख लिया। बिस्मा को अब वो नजर उठाकर भी नहीं देखता था और वो मेहमान लड़का उसे भी मालूम हो गया था कि माहम शाहजैन की बीवी है। उसने खामोशी से अपने कदम पीछे हटा लिए थे, मगर उसने ये सब कुछ शाहजैन को बताना जरूरी समझा था ताकि दोबारा कहीं बिस्मा माहम को किसी और साजिश में फंसाने की कोशिश न करे। वो माहम को उस जहरीली लड़की से बचाना चाहता था। शाहजैन ने जब ये सुना फिर लब पीच लिए थे। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसकी हवेली में रहने वाली सादा सी लड़की इतनी साजिशी भी हो सकती है। पहले माहम ने उसे हैरान कर दिया था और अब बिस्मा की वजह से वो सचमुच में परेशान हो गया था। तभी तो उसने एक मुलाजमा को माहम की देखभाल पर मामूर कर दिया था, जो हर वक्त उसके आसपास मौजूद रहती थी। उसने बातों ही बातों में माहम को भी इस बात पर खबरदार कर दिया कि वो बिस्मा से दूर रहे। ऐसा ना हो कि वो उसे भी नुकसान पहुंचा दे और उसके होने वाले बच्चे को भी। माहम को अंदाजा हो गया था कि बिस्मा उसे पसंद नहीं करती, क्योंकि अब बिस्मा उससे अपनी नफरत को छुपा नहीं सकती थी। खुलेआम उसे कहती कि तुमने अच्छा नहीं किया मेरी मोहब्बत को मुझसे छीन कर।
तुम भी कभी खुश नहीं रह पाओगी। तब माहम आंसू पीती रह जाती। ये जो कुछ भी हुआ था एक गलती की बुनियाद पर ही तो हुआ था। उसने जानबूझकर तो ऐसा कुछ भी करने की कोशिश नहीं की थी, और अगर उसकी तकदीर में शाहजैन लिखा था तो वो उसे मिल गया था। ये तो रब के फैसले थे। माहम को तो अंदाजा नहीं था कि उसकी गलती की वजह से शाहजैन उसे हासिल हो जाएगा। शुरू में तो वो शाहजैन से खफा रही, नाराज भी थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसकी मोहब्बत दिल में घर करने लगी थी, और अब तक वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहने लगे थे। वो दिन भी आ गया था जिसका सब लोगों को शिद्दत से इंतजार था। माहम ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। हवेली में वारिस आ गया था। हवेली में हर तरफ खुशियां गूंज रही थीं। सब लोग ही खुश थे सवाए बिस्मा के। ड्राइंग रूम में खुशियों के कहकों भरी आवाजें सुनाई दे रही थीं, और वो सीढ़ियां चढ़ते अपने कमरे में जा रही थी। वो बहुत ज्यादा अफसुर्दा थी, दुखी थी। कितना कुछ किया था उसने माहम को शाहजैन से दूर करने के लिए, उसकी नजरों से गिराने के लिए, मगर हर बार माहम कामयाब ठहरी थी। वो उसके दिल में शान से बराजमान हो गई थी। शाहजैन ने बिस्मा की तरफ देखना भी छोड़ दिया था। यूं भी जब उसे मालूम हुआ था कि बिस्मा उसे बेइज्जत करने के लिए इस हद तक गिरने वाली थी, तब से वो बिस्मा से नफरत करने लगा था। और आज बिस्मा के लिए आया हुआ प्रपोजल जेरे गौर था। सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे कि ये रिश्ता मुनासिब है। कोई उम्मीद थी कि उस प्रपोजल को हाँ कर दी जाएगी। बिस्मा से पूछने का किसी को भी ख्याल नहीं आया था, क्योंकि हवेली की रवायात के मुताबिक बड़े जो भी फैसला करते थे औलाद को उसके आगे सर झुकाना ही पड़ता था। अब बिस्मा ने भी फिर उस फैसले के आगे सर झुका दिया था। जब उसके नाम पर असलम के हाथ की मेहंदी लगाई जा रही थी, तब उसे इस बात का भी एहसास हो गया था कि आपकी तकदीर में वही इंसान शामिल हो सकता है जिसका नाम आपके रब ने आपके साथ लिख दिया हो, और जो तकदीर में शामिल हो उसे कोई दूर नहीं कर सकता। चाहे कोई कितनी ही साजिशें कर ले, कोई आपका नसीब नहीं छीन सकता। अब वो खाली हाथ रह गई थी और दुल्हन बनकर एक ऐसे शख्स की जिंदगी में शामिल हो रही थी जो उसके लिए कतई अजनबी था। न जाने वो उसे अपने दिल में जगह दे सकती थी या यूं ही खाली दामन रह जाने वाली थी। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।